Hello students, how are you? Now today you will study class 12 physics chapter 1st electric charges and fields lecture 12. So this first chapter electric charges and fields I have finished. Okay, now I am teaching systematically class 11 and 12. So you will observe, you will study systematically. You will get systematically, not irregularly. Watch and study carefully. Now this chapter I have finished. So now after that you will study NCERT exercise questions you will solve. NCERT exercise questions we can solve. Before solving NCERT questions, see the formula. Okay. This formula will be in your mind, memory. Then you can solve NCERT numerical questions. So now students see the formula. First, electric field E is equal to F by Q, force per unit charge. Coulomb's law you have read. Two charges placed in air or vacuum separated by certain distance R. So then this Coulomb's law, F is equal to K, constant of proportionality, Q1 Q2 by R square. अब इस K के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 1 by 4 pi epsilon naught इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K के प्लेस 1 by 4 pi epsilon naught और Q1 Q2 by R स्क्वायर. और इसका जो वैल्यू है ये 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by R square. For numerical purpose you can use this formula if these two charges are placed in a vacuum, free space or air. Now dielectric constant, third formula, dielectric constant or relative permittivity is equal to FV vacuum by F medium या permittivity of the medium are divided by absolute permittivity. This you remember. There are charge density, linear charge density lambda is equal to charge per unit length Q by L और surface charge density sigma is equal to Q by S, charge per unit area. और the sixth volume charge density, charge per unit volume. And also electric field, this you can consider. You will solve this in numerical. Here there is a charge, Q charge, or at r distance electric field at point P due to this charge क्या होगा? E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. E क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो देन इट हैज दिस इज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन. डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे इधर एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर ये निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट दिस डायरेक्शन. मींस इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज the electric field direction will be away from the charge, or if it is negative charge the electric field will towards the negative charge. Now formula 7 you can see electric dipole moment. Electric dipole moment, dipole you have read, two equal and opposite charges separated by a certain distance is known as electric dipole. Dipole moment P is equal to Q into 2L. The net charge on the dipole is 0. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल EA एक्सियल 1 by 4 pi epsilon naught 2P by RQ. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन EE इक्वेटोरियल लाइन 1 by 4 pi epsilon naught P by RQ. अब रिलेशन है बिटवीन ये दोनों में रिलेशन. अब यहां से देखो ये क्या, इसके प्लेस पे क्या लिख देते हैं? E लिख देते हैं. EA इज इक्वल टू ये 2 और इसके प्लेस पे क्या लिखा? EA. Then or A is equal to क्या होगा? half of electric field at a point on the axial line. Now if dipole is placed in a uniform electric field, if it is rotated so then torque is acting at tau is equal to P sin theta. Vector form में क्या होगा? tau arrow mark is equal to P cross E. और dipole is moved in a uniform electric field. In moving work is done. That work done is stored in the dipole in the form of potential energy. So potential energy is equal to minus P cos theta. और वेक्टर फॉर्म में कह सकते हो U minus P dot E. तो these are the formula. Okay, ये सब फॉर्मूला है, इसको लिख करके याद करोगे. After that you will solve numerical questions. Now I am not writing numerical questions. I will take book
and then I will read book and then solve numerical questions. Hope you will take a book, NCERT book, and then try to solve. Gauss theorem also you can see. Electric flux is equal to E dot ds. ठीक है, E dot ds इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, फाई इंटीग्रेशन E डॉट ds या E ds cos थीटा, या इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाई कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन ऑफ s क्या हो जाएगा, ds क्या होगा, es. दिस इज गॉस थ्योरम q1 एप्सिलॉन नॉट. गॉस थ्योरम क्या है, गॉस लॉ क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए फ्री स्पेस is equal to 1 by epsilon naught times net charge enclosed by the surface. तीन applications हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज, E is equal to क्या 1 by 2 pi epsilon naught lambda by, और lambda क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो इतना हो जाएगा. क्यों ऐसा किया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे क्योंकि इसका वैल्यू मालूम है 9 to 10 to the power 9. और electric charge is uniformly distributed on the sheet, so electric field is equal to sigma by 2 epsilon naught, or electric field at a point due to spherical charged cell E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught q by r square. So these are the formula you will see. After that you can solve numerical question. Now NCERT exercise question number 1.1. This time reading question and then try to understand. You will take your NCERT book first volume or exercise electrostatics. There are two exercises. First exercise, first chapter, electric charges and fields. A second, electrostatic potential and capacitance. Now just I have started, I have finished electric charges and field. After that you can solve some numerical questions. Formula you will remember, और इसके बाद हम लोग one by one solve करते हैं. This time reading question and try to understand. Then so I am not writing question paper. I am not writing question. You will keep NCERT and then try to understand. So first question you are getting, what is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 placed 30 centimeter apart in air. अभी क्या है, दो स्फेयर है, ये एक स्फेयर, इस पर चार्ज क्या है Q1 और दूसरा स्फेयर है, इस पर चार्ज क्या है Q2, सेपरेटेड है डिस्टेंस r. ठीक है, कहाँ है, एयर में है. ये Q1 कितना चार्ज हो गया, 2 into 10 to the power minus 7 coulomb. Q2 कितना चार्ज हो गया, 3 into 10 to the power minus 7. ये सेपरेशन कितना है 30 सेंटीमीटर. इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड कर दिया या डिवाइड कर दोगे क्या होगा, 0.3 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस. तो दोनों क्या चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्ज है. तो क्या करेगा, यहाँ रिपेल करेगा. फोर्स कैसा एक्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. तो फोर्स यू हैव टू फाइंड आउट. F इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला एयर में है, F इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by R स्क्वायर. अब ये 9 into 10 to the power 9 Q1 के प्लेस पे क्या होगा, 2 into 10 to the power minus 7 into Q2 के प्लेस पे 3 into 10 to the power minus 7, और ये R के प्लेस पे जो है कितना हो गया 0.3 होल स्क्वायर. यू कैन सिंप्लीफाई दिस. यू विल राइट 9 और 2 into 3 6 10 to the power 9 और 10 to the power minus 7 और minus 7, so it will be 10 to the power minus 14. अब ये देखो 0.3 है, ये 0.3 को कैंसिल कर दोगे, ये डेसिमल क्या यहाँ आ जाएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 इधर आ गया, और 3 से डिवाइड करोगे तो 2 हो गया. इसको भी 3 से डिवाइड करोगे, ये डेसिमल के प्लेस पे 0 यानी 30 हो जाएगा. अब क्या हो गया, 3 into 2 6 और 10 to the power 9 और 9 and 10 11. तो इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा 10 to the power minus 3. ये क्या हुआ, फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन यूनिट, और रिपल्सिव फोर्स, दोनों एक दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू मस्ट आस्क. ओके, नाउ वी कैन टेक
second question. Now question number 1.10, यानी 10 question number. This is, I'm reading question. An electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at an angle 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम. यानी क्वेश्चन क्या है, ये हमारा डायपोल है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट क्या एक्ट करेगा फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव. दिस डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, थीटा मींस 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, यानी ये इसका डायपोल मोमेंट दिया हुआ है और ये डायपोल प्लेस्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया हुआ है, एंगल कितना है 30 डिग्री है. तो देन यू हैव टू फाइंड आउट. तो हो गया क्वेश्चन. तो देन दिस कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल. तो डायपोल पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा. तो यू हैव रेड इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑन द डायपोल टॉर्क इज एक्टिंग. नेट फोर्स क्या होगा, इधर क्यू ई माइनस क्यू ई जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन द डायपोल. देन दिस पेयर ऑफ फोर्स हैज टेंडेंसी टू रोटेट द डायपोल, सो टॉर्क इज एक्टिंग. देन दिस टॉर्क हाउ मच, tau is equal to this, you have to find out. ये क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ये टाउ वी हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क. तो फॉर्मूला व्हाट इज फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा. पी कितना हो गया 4 इंटू 10 टू द माइनस 9 और ई कितना हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री. और साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है. तो देन यू आर गेटिंग हियर हाफ क्या होगा 4 से कैंसिल कर दोगे तो 2 इंटू 5 10 हो गया. 10 यानी माइनस 5 है तो क्या होगा माइनस 4 हो जाएगा. 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर. इस तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टॉर्क वी कैन फाइंड आउट. ओके, नाउ वी कैन टेक अदर क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1.18 18 क्वेश्चन नंबर. तो अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा रूम है, किसी भी शेप में है, क्यूब है, स्फेयर है, किसी भी शेप में. अब क्या है, अगर यहाँ चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यू हैव टू फाइंड आउट. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस. इलेक्ट्रिक यहाँ पर चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा इस वॉल से, 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 एवरीवेयर. चाहे एक कॉर्नर में चार्ज रखो या सेंटर में चार्ज रखो, कहीं पर. क्या है फॉर्मूला, ये जस्ट ये हमारा जस्ट क्यूब कंसीडर करो, बेस है और चार्ज ए साइड क्या है क्यूब का 9 सेंटीमीटर. और यहाँ पर चार्ज कहाँ है, सेंटर में है. क्यूब रूम में चार्ज कहाँ है, सेंटर पर है. कितना चार्ज है 2 माइक्रोकूलम. ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जस्ट आई एम रीडिंग क्वेश्चन. ओके 1.18 क्या होगा, पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम is at the center of a cubic Gaussian surface. ये कैसा है, क्यूब है, स्क्वायर नहीं, क्यूब. रूम क्या है, क्यूब टाइप में है, सभी लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या इक्वल है. और चार्ज कहाँ है, इतना चार्ज है 2 माइक्रोकूलम एट द सेंटर है. ठीक है, सेंटर है और साइड कितना हो गया 9 सेंटीमीटर ऑन द एज. व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस. नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यू हैव टू फाइंड आउट. अभी देखो गॉस थ्योरम से पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू क्या हो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ फाई जो है फ्लक्स जो है ये चार्ज पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर नहीं. चार्ज सेंटर में रखें या किसी कॉर्नर में रखें तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा. तो व्हाट विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यू कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस माइक्रोकूलम है, इसको चेंज कर दो कूलम में, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और इसका एप्सिलॉन का वैल्यू कितना 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. अगर चाहो तो इसको 9 भी ले सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए, सॉल्व करने के लिए. और डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, ये ऊपर जाएगा तो 2.26 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 1.17 you can see here a point charge 10 microcoulomb plus 10 microcoulomb is at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter। यहाँ फिगर में दिखाया गया है ये स्क्वायर है, बॉटम सपोज करो ये रूम का स्क्वायर शेप में है और साइड कितना है 10 सेंटीमीटर है, और ये चार्ज रखा गया है इस सेंटर से 5 मीटर ऊपर, सेंटर से 5 मीटर ऊपर यहाँ से, ठीक है। सेंटर से ये क्यूब है, क्यूब के स्क्वायर है, स्क्वायर के शेप से सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर में यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, चार्ज है। as shown in the figure, what is the magnitude of the electric flux through the square? What is the magnitude of the electric flux through the square? अब यहाँ पर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, इस वॉल पर फॉल करेगा, इस वॉल पे, इस वॉल पर, और कितना सरफेस हो गया 6 सरफेस है। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है, I is equal to Q by एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम से। सभी सरफेस पर, सभी वॉल पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पूछ रहा है कि सभी वॉल पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉल नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉल नहीं करेगा, केवल एक स्क्वायर इस सरफेस पर, तो सभी सरफेस पर करेगा, यानी सभी सरफेस है नहीं 6 सरफेस है, तो इतना हो जाएगा। अगर एक सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फॉलिंग ऑन द ऑल 6 वॉल्स, ऑल द 6 सरफेसेस ऑफ द वॉल्स, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। अभी क्या कर रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर, कितना फेस है 6 फेस, एक फेस पर कितना करेगा, फॉल करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यानी यहाँ पर क्या करोगे 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे। अब I इक्वल टू क्यू, क्यू के प्लेस पर क्या हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और यहाँ क्या हो 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम, तो क्यू के प्लेस पर हमने लिखा क्या 10 टू द पावर माइनस 5, ये 6 हो गया। एप्सिलॉन नॉट के प्लेस में 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो देन दिस यू आर गेटिंग 6 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1.88 इंटू 10 टू द 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इन दिस वे यू विल ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन from NCERT. If you have any doubt, any question, any query, you can ask. Thank you for watching. As you watch, so it will motivate me to give more lesson, more video. Thank you very much for